What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 25th of November, and we had Nifty's monthly expiry today. And for major part of the trading day, the expiry was quite manageable apart from the final hour gamma. We did discuss in the yesterday's video that if the markets gap up by a small amount, then 26,000 will act as some sort of an anchor point and the markets will be dilly-dallying around 26,000 levels. For the majority part of the day, the markets did hover around 26,000 with 26,000 straddles giving some sort of a linear decay. But the markets got sold into and we almost saw 150 point sell-off in the final hour, which spiked the puts. But in spite of market seeing some sort of a sell-off, India VIX got crushed by almost 8%. 2 days back, we were trading somewhere around 13 and today the India VIX is trading somewhere around 12. So let's get to the terminal and let's analyze what the open interest is saying, what the walls are saying and what the price action is saying for tomorrow's Sensex 1DT, because day after tomorrow we have Sensex expiry and Sensex walls are at an interesting level. So let's get to the terminal and let's analyze. All right, Nifty की डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो we can see that the markets have printed yet another red candle and yet another Marubozu candle. So this is kind of out of my comprehension how the markets are able to close exactly at their day's high or day's low so many times in the last 3 or 4 months. So यहाँ पे now this will be acting as a local maxima. तो markets अगर ऊपर जाना है तो obviously थोड़ा बहुत यहाँ पे consolidate करके breakout होना चाहिए if at all the all time high breakout is to be considered valid. But at the same time अगर ये फेक आउट नहीं है बट जस्ट मार्केट यहाँ पे शेक आउट करने के लिए आया है एंड वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आया है, देन आइडियली इट शुड नॉट ब्रीच 25,700 लेवल्स. सो 25,700 लेवल शुड आइडियली होल्ड. तो मेरे हिसाब से द मार्केट शुड कंसोलिडेट समवेयर बिटवीन 26,200 एंड 25,700 फॉर अनदर 2 weeks और सो बिफोर गिविंग एन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. बट क्या मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देगा या मार्केट यहां से फिर से एक सेल ऑफ मिलेगा? टाइम विल हैव टू से एंड वील ऑल्सो बी वेटिंग फॉर द प्राइस एक्शन. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो टुडेज एक्सपायरी सीम टू बी क्वाइट इजी. आई मीन for the major part of the day, the markets were in a small range. इतना बड़ा रेंज भी नहीं था. हमने ये डिस्कस किए थे कि अगर थोड़ा भी गैप अप खुलता है तो then that 140 रुपीज का जो स्ट्रैडल जो कल शाम को क्लोज हुआ था that will be opening somewhere around 120 and it did exactly that. 120 के आसपास स्ट्रैडल खुला एंड जैसे मार्केट्स गैप अप खुल गया ना तो दिस एक्टेड लाइक अ डिमांड जोन. तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे एक बार डिमांड आया एंड वहां से मार्केट्स हिट 26,000 लेवल्स एंड वहां से फिर से एक सेल ऑफ हिट the day slow, again hit 26,000 levels and वहां से फिर से मार्केट्स एक कंप्लीट यू टर्न लेके एक सेल ऑफ लेके मार्केट्स डे स्लो को तोड़ा and at the same time we closed almost at the day's low. So at this point the puts were not pricing in some sort of a 25,950 or below expiry. Even 26,000 puts be somewhere around 11 rupees or 12 rupees trade kar rahe the, and when the markets expired the 26,000 puts were trading somewhere around 85 rupees. And even the OTM like one strike OTM puts 25,950 puts jo the somewhere around 4 rupees ya 3.5 4 rupees ke aaspaas the, they also made a high of 90 and they closed at somewhere around, they made a high of I think 70 का हाई बना के दे क्लोज समवेयर अराउंड 65 पे ये भी क्लोज हो गए. सो द पुट्स काइंड ऑफ blew up in the final hour, but apart from that the volatility was kind of absent. Yes, यहाँ पे एक sell off देखने को मिला, but you can notice that it was a one way move. So if one managed to kind of get out of their bleeding puts at the right time, I think they would have done quite well. And if at all somebody captured the delta from here, अगर day slow होने के बाद breach होने के बाद अगर कोई 900 का या 850 का calls भी short किए होंगे, they would have also got a decent 30-35 rupees. Because 900 was trading at a premium because the markets were expecting some sort of a bounce from this level. But 3 o'clock के आसपास जब ये टूट गया, then even the 300 calls kind of melted in a linear fashion. तो अगर स्ट्रैडल की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किए थे वी ओपन समवेयर अराउंड 120 के आसपास ओपन हुए थे एंड उसके बाद इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ लीनियर काइंड ऑफ अ क्रश. यस, मार्केट्स 100 पॉइंट्स ऊपर 100 पॉइंट नीचे जा रहा था बट एज आई सेड 26,000 वाज एन ऑब्वियस एंकर पॉइंट वेयर मार्केट्स वुड बी डिली डैलिंग अराउंड एंड द मार्केट्स डिड जस्ट दैट. एंड उसके बाद जब सेल ऑफ आना चालू हो गया तो वहां पे एक बार एक स्पाइक देखने को मिला. बट एज आई एम सेइंग अपार्ट आफ्टर द जेन स्ट्रीट एरा मोस्ट ऑफ दिस स्पाइक्स आर इंस्टेंटली कंज्यूम्ड. मतलब 5 मिनट के अंदर वो स्पाइक भी आ जाता है एंड वो कंज्यूम भी हो जाता है एंड स्ट्रैडल एक नेक्स्ट लो भी मार देता है. सो टुमारो वी हैव
सेंसेक्स की एक्सपायरी, आई मीन सेंसेक्स की 1DT, बिकॉज डे आफ्टर टुमारो वी हैव सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी, एंड सेंसेक्स का स्ट्रैडल भी काफ़ी ज़्यादा आज टूट चुका है फ्रॉम ऑलमोस्ट 700 लेवल्स टू 550, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डीके दे चुका है, क्रश दे चुका है, एंड 540 अगर आज खुला है, आई मीन आज क्लोज हुआ है, तो प्रॉबली कल ये ओपन होगा समवेयर अराउंड 500, विच मेक्स इट नीदर वेरी अट्रैक्टिव नॉर टू अनअट्रैक्टिव फॉर द सेंसेक्स 1DT ट्रेड्स। तो कल शॉर्ट वॉल ट्रेड एक बन सकता है, बट उसको ट्रेड करने के लिए मतलब मैं एक रेंज ढूंढना पड़ेगा। तो इफ यू गो ऑन टू द सेंसेक्स चार्ट, हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रेंज बन चुका है विथ अ प्रॉपर सॉलिड प्राइस एक्शन। यहाँ पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन चुका है। ऑफ कोर्स वी आर ट्रेडिंग बिलो दिस डबल बॉटम पैटर्न, बट इफ एट ऑल वी ओपन अ गैप डाउन और इवन अ फ्लैट ओपनिंग, तो देन दिस पुल बैक टुवर्ड्स दिस लेवल 84,750, 84,800 के आसपास एक कॉल्स को हम लोग एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड बेट। एट द सेम टाइम इफ वी ओपन अ बिग गैप, इफ वी थिंक दैट ये जो लास्ट 1 आवर का जो मूव है, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी रिलेटेड एक्टिविटी, एंड कल मार्केट इट विल हैव टू ओपन इन इट्स नेचुरल कोर्स। तो अगर मार्केट 84,800, 84,900 के आसपास ओपन हो जाएगा, देन दिन के लिए ये अच्छा खासा एक रेंज बन जाएगा, एंड इस रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द अपसाइड वी ओनली हैव 300 पॉइंट्स टू वरी अबाउट, एंड टुवर्ड्स द डाउन साइड 800 है, एंड यहाँ पे 540 है, तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट है। तो if we get the straddle pricing as somewhere around 500, so 300 points on the upside and 300 points on the downside should be manageable. But again, दिन के बीच if during the trading day अगर किसी direction में एक breakout हो जाता है, then of course there will be some sort of a repricing of straddles, and at the same time we can see some sort of a skew also develop on the other side. So मेरे लिए कल के लिए अगर price action base पे बात करें तो yes, अगर एक बड़ा gap down खुलता है, एक बड़ा गैप अप खुलता है, तो देन यस दिस विल बी अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट। ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा 85,100, 85,200 के आसपास, एंड एट द सेम टाइम टुडेस लो, ये भी नहीं, मैं एग्जैक्ट 84,500 भी नहीं बोलूंगा, 84,600 शुड इटसेल्फ एक्ट एज अ डिसेंट सपोर्ट, बिकॉज ये जो है ये फाइनल 15 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन है, तो इसको मैं डिस्काउंट करने वाला हूं। तो मेरे लिए 84,600 से लेके 85,150, 85,200 के आसपास का जो रेंज है मेरे लिए ओपन हो जाएगा। तो आई विल बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड। तो कल के दिन दोनों तरफ में मीन रिवर्शन ट्रेड ट्राई करूंगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस, जनरली लाइक 1:3, 1:2 का मतलब रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन शॉर्ट एट द मनी ऑप्शंस। जब भी मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक मारेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक 85,000 का कॉल्स भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इफ द मार्केट्स कम समवेयर अराउंड 84,600 लेवल्स, देन 84,500 या 84,600 का भी पुट्स शॉर्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा डाइसी काइंड ऑफ सिचुएशन में है मार्केट, बिकॉज यहाँ पे एक लोकल टॉप तो बन चुका है, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स यहाँ पे सेल ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर इसको फेक आउट होना होता है तो देन मार्केट्स एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट नीचे आएगा, ऐसे प्राइस एक्शन बना के यूजुअली नीचे नहीं आएगा। एंड एट द सेम टाइम द बिहेवियर ऑफ विक्स इज ऑल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स आवर हाइपोथेसिस, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिलता, या मान लो कि 1,500 पॉइंट्स का एक सेल ऑफ पेंडिंग है, तो देन इट वुड बी आइडियली रिफ्लेक्टेड इन द विक्स। बट विक्स आज 7.5% क्रश हो चुका है, एंड फ्रॉम 13 विक्स इज नाउ ट्रेडिंग एट 12.2 लेवल्स। सो ये दोनों कंबाइन करके एक अज्यूम कर सकते हैं कि यस दिस हाई जो लोकल मैक्सिमम जो बना है, तो इट माइट बी टेकन आउट इन द नियर फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम वी कांट बी विशफुल थिंकिंग तो नहीं कर सकते, एंड वी कांट बी जंपिंग द गन एज वेल। तो व्हेन द मार्केट्स हिट दिस लेवल, द नेक्स्ट टाइम वहां पे फिर से हम लोग प्लान कर सकते हैं एक ब्रेकआउट के लिए, बट एज ऑफ नाउ द मार्केट शुड नॉट ब्रीच, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स हियर, बट अगर निफ्टी की टर्म्स पे बात करें तो मार्केट शुड आइडियली नॉट breach 25,700 on the downside if at all this movement is to be taken as a consolidation. All right, so कल मार्केट के बाद फिर से मैं मिलूंगा with my video. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.